Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. आज हम श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय और श्लोक नंबर 34 पाठ से ए अध्यायर नाम ध्रुव महाराजंकर गृह प्रत्यावर्तन। मयि तत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषे प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदं अजाचेहं भवं भाग्यविवर्जितः मयि तत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषे प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदं अजाचेहं भवं भाग्यविवर्जितः मयि तत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषे प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदं अजाचेहं भवं भाग्यविवर्जितः। इस श्लोकर अनुवाद एवं भावार्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद ध्रुव महाराज चिंता करछन्ति जे परम पुरुष भगवान को प्रसन्न कराइबा एक दुरूह व्यापार अटे, किंतु मु जदिओ समग्र ब्रह्मांडर परमात्मा को प्रसन्न करी तथापि तांको असार वस्तु प्रार्थना कली। मोर एतादृश कार्य मृत व्यक्ति को चिकित्सा करने सदृश अटे, जे भाव जन्म मृत्युर बंधन को छिन्न करि पारंती से परमात्मा दर्शन पाई मध्य पुणी मुझे भवबंधन प्रार्थना कली। भावार्थ बेले बेले एपरि देखा जाए जे भगवान प्रेममयी सेवार नियुक्त थिबा एक भक्त सेवा बदल रे किसी भौतिक लाभ पाइबा इच्छा करते। यह भक्ति जाजनर ठिकाना पंथा नुहे। अवश्य भक्त अज्ञातावशत ए प्रकार कामना करिथांती, किंतु ध्रुव महाराज व्यक्तिगत भाव एथिपाई दुख प्रकाश करछन्ति। तेणु श्रीमद् भागवतर ए श्लोक ध्रुव महाराज भगवान को तपस्या द्वारा संतुष्ट करी वरदान प्राप्त ही गृह को प्रत्यावर्तन करछन्ति। गृह को प्रत्यावर्तन करने समय से तांकर स्थिति संबंध में चिंता करी अनुताप करछन्ति। जदिओ ध्रुव महाराज एपरी वरदान प्राप्त होते जहाँ साधारण व्यक्ति पक्षर संभव नुहे, से प्रसन्न हवा कथा, किंतु से प्रसन्न हवा बदल से अनुताप कर निजर कार्य पाई। तबे आपण मैंने समस्त जानी किपरि ध्रुव महाराज जितेबाला 5 वर्षर बालक सेतेबाला से राजप्रसाद विमाता द्वारा अपमानित होती। महाराज उत्तान पाद तांकर 2टी पत्नी थिले, जे ज्येष्ठ राणी
ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସୁନୀତି ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସୁରୁଚି। ତେବେ ମହାରାଜ ଉତ୍ତାନପାଦ କନିଷ୍ଠ ରାଣୀ ସୁରୁଚିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ ସୁନୀତି ଏକ ପ୍ରକାର ଯଦିଓ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିଥିଲେ ତଥାପି ଏକ ପ୍ରକାର ମହାରାଜ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମେ କହିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନାଦରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁନୀତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଏବଂ ସୁରୁଚିଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ। ଉତ୍ତମ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ତେଣୁ ଦିନେ ମହାରାଜ ଉତ୍ତାନପାଦ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ରାଣୀ ସୁରୁଚି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ସେ କୋଳରେ ନେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ପିତାଙ୍କର କୋଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ଦର୍ଶନ କରି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ନିଜ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ମହାରାଜ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ସୁରୁଚି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ପ୍ରଣୋଦିତ ହେଇ ସେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଧ୍ରୁବ ତୁମେ ତୁମର ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ସୁରୁଚିଙ୍କର ସୁନୀତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ରହିଥିଲା, ଶପଥଣୀ ଭାବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁରୁଚି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେ କି ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରୁଚି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସୁରୁଚି ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସୁରୁଚି ନିଜେ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବତ୍ସ ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବା ତାଙ୍କର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସୁରୁଚି ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ ସେ ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ସେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ। ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ରାଜସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସୁରୁଚି
शास्त्र योग्यता को परिवर्तन कर देछन। वर्तमान से कहते गर्भर जात हवा ये हूँ योग्यता महाराज उत्तानपादंकर कोଳରେ बा राज सिंहासन बसवा। कारण सुरुचिंकर टिके अहंकार आसी जाइए जेहेतु महाराज उत्तानपाद तांको भल पाउछंती ज्येष्ठ राणी सुनीति को एतटा भल पाऊना तेणु सुरुचिंकर गर्व अहंकार आसवा स्वाभाविक। साधारणतः स्त्री लोक मानकर एपरी मनोवृत्ति देखा जाए जदि स्वामी भल पाउछंती तांको भितर अहंकार आसवा स्वाभाविक। तेबे सुरुचि पुणी उपाय बताउछंती ध्रुव महाराज जे बस तुम्हें जदि तुम पितांकर कोଳରେ बा राज सिंहासन रे बसिया ପାଇଁ इच्छा करूछ ताहले तुम्हें गोटे काम करि परिबो कौन ना तुम्हें वन को जाई तपस्या आचरण कर आउ से तपस्या रे तुम्हें भगवान हरि को संतुष्ट कर। जदि भगवान हरि संतुष्ट हेबे तुमको वरदान प्रदान करिवे ताहले परजन्म रे तुम्हें मो गर्भर उत्पन्न हो एवं राज सिंहासन रे एवं पिता कोल रे बसिया पे योग्य। तार अर्थ सुरुचि चाहते जे ध्रुव महाराजंकर मृत्यु हो से तपस्या करी वरदान प्राप्त होंतु तांकर मृत्यु हो तापर से तांको कोलर जन्म हेले महाराज उत्तानपाद कोल रे बस पारे राज सिंहासन रे बस पारे। तेणु ध्रुव महाराज जो एक श्रवण कले से अत्यंत क्रोधित हो गले कारण क्षत्रिय संतान तेणु एपरी अन्याय तांकर पितांकर सम्मुख रे होउची निजे तांकर माता विमाता महाराज उत्तानपाद सम्मुख रे कथा कहउछंती जहाँकि अत्यंत अन्याय। तेणु से क्रोधित हो गले एवं अपेक्षा कले जे पिता यार किसी प्रत्युत्तर दौरान कि ना किंतु जेहेतु महाराज उत्तानपाद सुरुचि को भल पाउथिले एवं जदियो से जानूले जे ये अन्याय सुरुचिंकर एपरी कहवा ठीक है किंतु से सुरुचि को किसी कहि पारले ना कारण से भाविले जदि से किसी कहिबे सुरुचि को सुरुचि तांके प्रति अप्रसन्न हो जाए क्रोधित हो जाए। किंतु राजार कर्तव्य से न्यायोचित विचार कर अन्याय को राजा केवे प्रश्रय देवन। जदि राजा अन्याय को प्रश्रय देला ताले से राज्य रे प्रजा माने केवे सुखी हो पारे। किंतु महाराज उत्तानपाद स्त्री द्वारा मोहित है अन्याय को प्रश्रय दे से चुप रहिले किसी कहले जपरि शास्त्र रे कहा जाइछि मौनम सम्मति लक्षण। जदि अन्याय होउछि आ जने प्रतिवाद करूनी मौन रहउछि ताहले से अन्याय को समर्थन करुछि बोली जनाजी। तेणु अन्याय को समर्थन करिवार अर्थ से मध्य अन्यायर दंड भोग कर जे अन्याय करुछि से दंड भोग करिवो जे समर्थन करुछि से मध्य दंड भोग कर। तेणु महाराज उत्तानपाद जो नीरव रहिले ध्रुव महाराज प्रथमे क्रोधित होते विमातांकर वाक्य बाण द्वारा एवं पितांकर नीरवता तांको आहुरी कष्ट दे जे पिता मध्य अन्याय को समर्थन कर
तेणु ध्रुव महाराज बर्तमान क्या निकट को जी जदि राजा अन्याय को समर्थन कर से क्या निकट को जी तेणु ध्रुव महाराज कांदा को आरंभ कले एणे क्रोध विमाता प्रति आने महाराज उत्तानपाद अन्याय दर्शन करी अन्याय को समर्थन दर्शन करी से क्रंदन कर वर्तमान तांकर जपरी कहीं नहांती जे जहाँ पाखु जाई से निजर दुख जन पारे तेणु शेष ध्रुव महाराज तांकर माता निकट को आस जदिओ तांकर माता जानी से किसी करें कारण से महाराज उत्तानपाद द्वारा अनादृत होती माता तेबे ध्रुव महाराज एकमात्र सहाय वर्तमान तांकर माता तेणु क्रंदन करी जपरी सर्प को कौन सी दंड द्वारा आघात कले सर्प जपरी क्रोधित दीर्घ निश्वास त्याग करे हाँ हाँ हुए ध्रुव महाराज तू क्षत्रिय संतान क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में शत्रुर बाण को सह्य करि पारिबो किंतु कहार अपमान को क्षत्रिय सह्य करि पारिबो तेणु ध्रुव महाराज जदिओ 5 वर्षर बालक किंतु विमातांकर वाक्य बाण तांके पई असह्य होइछ तेणु क्रंदन करी ध्रुव महाराज जो जाउछन्ति निजर मातांग निकट को सेते बेलकु सुनीति ए समाचार श्रवण कर सारी राजप्रसाद रे जो घटना घटित है दास दासी माने समाचार देइछन्ति सुनीति तेणु जो ध्रुव महाराज क्रंदन करी आसुछन्ति तांक निकट को ध्रुव महाराज को देखि सुनीति मध्य क्रंदन करने को आरंभ कले तबे क्रंदन करी ध्रुव महाराज निकट को आसिले सुनीति निजर पुत्र को कोल को नहीं गले एवं कोल को नहीं माता एवं पुत्र दुई जन जाक क्रंदन कर एपरी अनेक समय व्यतीत हो दुई जन क्रंदन कर सुनीति चिंता कले जे मु जेहेतु महाराज द्वारा उपेक्षिता तेणु ध्रुवर यही जो दुख उत्पन्न हो अपमानित हो ध्रुव तापाई मु किछि कर परिबेनी किंतु ध्रुव को मोर पुत्र को सांत्वना प्रदान करवा मातार कर्तव्य तेणु सुनीति भावुछन्ति जे एहीपरि भाव दुख आमे माता एवं पुत्र जदि हजार हजार वर्ष धरी क्रंदन कर चलू ताहले ये समस्यार समाधान हम तेणु ये समस्यार किसी समाधान आवश्यक एक कथा चिंता करी सुनीति निजर 5 वर्षर पुत्र को उपदेश प्रदान करी कहते जे हे पुत्र तू कहा प्रति हिंसा भाव बा द्वेष भाव रख तोर विमाता जहाँ कहते ताहा सत्य जे मु राजा द्वारा उपेक्षित तेणु से जो तुते उपदेश देइछन्ति जे जदि तू राज सिंहासन रे बा पिता कोल रे बसिया को चाहू ताहले तोते वन को जाई तपस्या करी भगवान हरि को संतुष्ट करने को पड़ो तेणु ताहा ही सत्य भगवान के व्यतीत तोर ये दुख दूर करने आउ संसार रे कहीं ना मु तोर माता ही मध्य तोर दुख को दूर करी पारिबी तेणु तू जदि प्रकृत तोर
दुख को दूर करने को चाहूँ आ पिता राजसिंहासन में बसवा को चाहूँ ताहले तू वन को जाई भगवान हरि को संतुष्ट कर तपस्या द्वारा भगवान को संतुष्ट कर सुनीति भल भाव जानते ये उपदेशर अर्थ कौन 5 वर्षर बालक पुत्र को सुनीति कहते वन को जाई तपस्या करने कौन सी माता एपरी कहीपर साधारण माता किंतु सुनीति जेहेतु भगवान भक्त थिले तेणु भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास थिला जे 5 वर्षर बालक वन को जीव तपस्या करने किंतु तपस्या करने पूर्वर वनर बाघ भालू ताको खाई से हूँ तो जीवित रही तपस्या करने तेणु सुनीति किंतु जेहेतु भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रही जे भगवान मोर पुत्र को रक्षा करेंगे तेणु से ध्रुव महाराज को एपरी कहते पुत्र तुम्हें वन को जाई तपस्या आचरण करी भगवान हरि को संतुष्ट कले से तुम्हारा दुख दूर कर भगवान का व्यतीत ए संसार में आउ कहीं नहांती जे तुम्हारा दुख को दूर कर तेणु ध्रुव महाराज जितेबाला माता एपरी उपदेश प्राप्त है सेतेबाला से काल विलंब न करी संगे संगे राजप्रसाद त्याग करी वन अभिमुखे यात्रा कले ध्रुव महाराज भय नथिला जे वन रे बाघ भालू हिंस्र जंतु मान रही से माने आक्रमण करेंगे ये सब भय नथिला ध्रुव महाराज मनरे एकमात्र गोटे उद्देश्य थे जे मोर विमाता मते अपमानित करछन्ति मोर पितांग कोଳରେ बसिबाको देई नाहंती बा राज सिंहासन रु मते वंचित करछन्ति तेणु मोर आ वर्तमान पितांगर कोळ बा पितांगर राज सिंहासन आवश्यक नहीं वर्तमान मु तपस्या करी भगवान को संतुष्ट करी एपरी एक राज्य चाहिए जहाँ मोर पितांकर पिता तांकर पिता अर्थात प्रपितामह पितांकर राज्य ठारू उच्चतर राज्य मोर ए राज्य आवश्यकता मुझे भगवान हरि को तपस्या करी संतुष्ट करी ताहले मु सबुठारू उच्चतर राज्य कामना करी यही उद्देश्य नहीं ध्रुव महाराज गृह त्याग कले एवं वनगमन कले तेरे महाराज उत्तानपाद होती स्वयंभुव मनकर पुत्र तेणु ध्रुव महाराज चाहिए प्रपितामह राज्य ठारू उच्चतर राज्य प्रपितामह होती ब्रह्मा उत्तानपाद पिता स्वयंभुव मन पिता होती ब्रह्मा तेणु ये संसार रे जो 14टी लोक रही 7टी लोक ऊपर 7टी लोक तले रही ए पृथ्वी आमर मझिरे रही मध्यवर्ती स्थान तेणु सर्वोच्च लोक हूँ ब्रह्मलोक जो ब्रह्मा निवास कर ब्रह्मलोक उपर आउ कौन सी लोक ना ये ब्रह्मांड किंतु ध्रुव महाराज चाहूला ब्रह्मा लोक ठारू उच्चतर राज्य जार स्थिति नहीं एक असंभव कामना ध्रुव महाराज एक असंभव कामना कर ब्रह्मांगर राज्य ठारू उच्चतर राज्य जार अवस्थित नहीं एवं यही कामना नहीं ध्रुव महाराज जो वन को जाइछन्ति तपस्या करने से समय भगवत इच्छा रे नारद मुनि आसी सेठारे उपस्थित होइछे एवं नारद मुनि जब ध्रुव महाराज को देखिले
तेणु ध्रुव महाराज को सांत्वना प्रदान करने चेष्टा कले। नारद मुनि कहले ध्रुव तुम्हें बयस मात्र 5 वर्ष, पिला माने मान अपमान कौन जानते ना। अनेक समय आम पिला को कहीदे तू बहुत दुष्ट, से पिला माने अपमानित बोध करते सब कारण से माने मान अपमान कौन जानते। तेणु नारद मुनि ध्रुव महाराज कहते ध्रुव तुम्हें बालक मात्र 5 वर्ष बालक, तुम ये मान अपमान कौन। तेणु तुम्हें घर को फेरी जा, भगवान को तपस्या कर संतुष्ट करवा एत सहज कथा न। एवं तुमर वर्तमान जो बयस ये तुमर साथी मान सहित क्रीड़ा करिवार बयस, खेलिवार बयस, खेलिवा बयस रे तुम्हें तपस्या करी भगवान को संतुष्ट करवा असंभव। तेणु तुम्हें घर को फेरी जा। किंतु ध्रुव महाराज दृढ़ निश्चय थे जे भगवान को संतुष्ट करी तांकठारु वरदान प्राप्त न हवा पर्यंत से गृह को प्रत्यावर्तन करेंगे। तेणु ध्रुव महाराज जितेबाला निजर दृढ़ निश्चयता प्रकाश करी नारद मुनि को कहले जे हे मुनि श्रेष्ठ, आपण जो उपदेश मत प्रदान करछंती अति उत्तम उपदेश, किंतु ये उपदेश मो पाई प्रयोज्य न। कारण मोर हृदय अपमानित होता हेतु मोर हृदय जो देशभाव उत्पन्न है विमाता प्रति, यह को त्याग करने मो पक्षर एत सहज न। तेणु आपण जदि जानते कौन उपाय मु किपरि तपस्या करी भगवान को संतुष्ट करि परिबी, मते से उपाय प्रदान कर। तेणु नारद मुनि देखिले जे ध्रुव दृढ़ निश्चय रही भगवान को तपस्या करी संतुष्ट करने। कारण ये दृढ़ निश्चयता भक्ति मार्ग में बहुत आवश्यक। जो भक्तर दृढ़ निश्चयता नहीं भक्ति मार्ग में से भगवान को प्राप्त हवा सहज। से श्री रूप गोस्वामी कहते उत्साह निश्चय धैर्य तत्तर कर्म प्रवर्तना। जब भक्तर सब समय रे भगवान का सेवा पाई उत्साह रहा दरकार, और से दृढ़ निश्चय हवा दरकार जे मु अवश्य भगवान को संतुष्ट करी, तंगर कृपा प्राप्त हेबी, ये दृढ़ निश्चयता रहा आवश्यक। और से भक्त प्रतीक्षा करिवे, सेथिपाई धैर्य धारण करिवे जे भगवान केबे कृपा करिवे से तांको ऊपर निर्भर करे। आम इच्छा रे भगवान कृपा करिवे, सेथिपाई भक्त सब समय धैर्य धारण करिवे। तेणु ध्रुव महाराजंकर दृढ़ निश्चयता दर्शन करी नारद मुनि संतुष्ट है। कारण गुरु अनेक समय शिष्य को एपरी परीक्षा करता, शिष्यर केते दृढ़ निश्चयता रही भक्ति मार्ग जानापी से एपरी परीक्षा करता। तो नारद मुनि प्रथम ध्रुव महाराज गृह को फेरी जावाई कहे, निरुत्साहित कले तपस्या करने। किंतु ध्रुव महाराज दृढ़ निश्चयता दर्शन करी वर्तमान से मार्ग प्रदर्शन कर किपरि भाव से तपस्या आचरण करी भगवान को संतुष्ट कर।
तेणु नारद मुनि ध्रुव महाराज कहले बस तुम्हें जदि भगवान को तपस्या द्वारा संतुष्ट करने को चाहूस ताहले तुम्हें मधुवन को जाओ। मधुवन हूँ वृंदावन जो द्वादश वन रही ब्रजरे ता मध्यरु मधुवन हूँ अन्यतम। तेणु मधुवन जहाँ मथुरा निकट में एवं भी से वन रही जो ध्रुव महाराज तपस्या करते। तेणु नारद मुनि का निर्देश प्राप्त है ध्रुव महाराज मधुवन को चलीगले। जमुना कूल मधुवन अवस्थित। तेणु त्रिकाल संध्या ध्रुव महाराज जमुना स्नान कले एवं भगवान कर उपासना व पूजा आरंभ कले। ता सहित निजर इंद्रिय मान को संयम करी से भगवान कर ध्यान करने को लगे। तेणु इंद्रिय मान को संयम करने को हेले खाद्य पेय संयमता अवलंबन करने बहुत आवश्यक। आमे जदि भूरी भोजन करुचे आवश्यकता ठारू अधिक भोजन करुचे ताहले इंद्रिय मान को संयम करने संभवपर। तेणु जो माने भक्ति मार्ग में अग्रगति करने को चाहती से भोजन उपर नियंत्रण रहा आवश्यक। ताहले से माने इंद्रिय उपर नियंत्रण करें एवं इंद्रिय माने नियंत्रित हेले मन नियंत्रित है। मन नियंत्रित हेले मन रे आमे भगवान को ध्यान करि परिबा बा स्मरण करि परिबा। ता नहेले मन अस्थिर हो उठे। अस्थिर मन रे भगवान का ध्यान हो परिबा। तेणु मन को स्थिर करने को हेले खाद्य पेय संयमता आवश्यक। तेणु ध्रुव महाराज जितेबाला तपस्या आरंभ कले कठोर तपस्या मात्र 5 वर्षर बालक किंतु एपरी दृढ़ निश्चयता रही जे मु अति शीघ्र भगवान को प्रसन्न करी तंकर कृपा प्राप्त है। सेथिपाई ध्रुव महाराज प्रथम मास प्रति तृतीय दिन रे से बनर जो फलमूल रही कपित्थ बा बदरिका फल बरकोली बदरी ताकू खाई से जीवन धारण कर। प्रतिदिन नुहे प्रति तृतीय दिवस थरे खाइबे फल खाइबे कपित्थ कईंथ आउ बरकोली ये बनरे उपलब्ध। तेणु प्रति तृतीय दिन रे से थरे खाऊଥିଲେ। ये प्रथम मास एपरी व्यतीत है एवं भगवान का ध्यान करुଥିଲେ। द्वितीय मास जितेबाला आसला से प्रति 6 दिन रे आउ फल खाइले। वृक्षरु जो शुष्क पत्र आदि पड़ूला तले से शुष्क पत्र खाइबा आरंभ कले। एपरी गोटे मास शुष्क पत्र खाई रहिले प्रति 6 दिन रे थरे। जितेबाला तृतीय मास आसला तृतीय मास रे से शुष्क पत्र भी त्याग करदे ध्रुव महाराज। प्रथमे तो फल त्याग कर देथिले शुष्क पत्र भी त्याग करदे। तृतीय मास रे प्रति 9 दिन रे थरे जल ग्रहण कले।
केते कठोर तपस्या। एवं जिते चतुर्थ मास आसला सेतेबेले प्रति 12 दिन थरे से जल त्याग करदे। प्रति 12 दिन थरे केवल वायु भक्षण कले एवं वायु भक्षण करी से तांकर इंद्रिय मान को पूर्ण रूप से संयत करने वायु चलाचल को जो नियंत्रण कले तांकर शरीर मध्य तेणु इंद्रिय मान सब नियंत्रित हो मन नियंत्रित हो। तेणु पंचम मासरे ध्रुव महाराज गोटे पादरे छिड़ा है वायु जो ग्रहण करुले प्रति 12 दिन थरे से वायु ग्रहण करने भी बंद करदे पंचम मास। तेणु गोटे पादरे छिड़ा है जेहेतु मन वर्तमान केन्द्रित होता इंद्रिय मान संयमित होते से भगवान कर सुंदर रूपर ध्यान करने को लगे एकाग्र चित्त हृदय मध्य भगवान को ध्यान कले जहाद्वारा भगवान को से हृदय रे धारण कले तांकर ध्यान एपरी तीव्र होता ध्रुव महाराज से गोटे मुहूर्त पाई तांकर ध्यान भग्न हो न जहा फल से भगवान को तांकर हृदय रे धारण करने हेतु तांकर शरीर ओजन बढ़ीगला शरीर भार बढ़ीगला जहा फल पृथ्वी जो स्थान रे ध्रुव महाराज दंडायमान होते गोटे पादरे सेठारे पृथ्वी तलू दबीगले एवं वायु को नियंत्रण करथिबा हेतु ध्रुव महाराज बर्तमान वायु मध्य ग्रहण करूना तेणु समग्र संसार प्राणी मानकर श्वासरुद्ध होगा लगे देवता माने से माने श्वासरुद्ध अनुभव कले तेणु देवता माने अतिष्ठ है कारण श्वासरुद्ध हेले व्यक्तिर मृत्यु सुनिश्चित तेणु देवता माने श्वासरुद्ध अवस्था भगवान विष्णु का निकट को गले तांको रक्षा करने ए अवस्था देवता माने जाई भगवान विष्णु को प्रार्थना कले तेणु भगवान विष्णु देवता मान कहले तुम मैंने व्यस्त हबार किसी कारण नहीं उत्तान पाद नंदन ध्रुव से कठोर तपस्या करी मोर ध्यान करुछंती तेणु मु अतिशीघ्र जाई तांको तपस्या विरत करेबी तांकर इच्छा को पूर्ण करेंगे। तेणु देवता माने भगवान आश्वासन द्वारा से संतुष्ट हो निज स्थान को चलीगले भगवान निजे गरुड़ पृष्ठ आरोहण करी ध्रुव महाराज जो मधुबन तपस्या करुले से स्थान रे आसी पहुँचले। तेणु ध्रुव महाराज हृदय भगवान जो ध्यान करुले जिते भगवान आसी पहुँची गले निकट में ध्रुव महाराज चक्षु बंद कर ध्यान कर संपूर्ण भाव में ध्यान मग्न अच्छा हठात तांकर हृदय भगवान अंतर्ध्यान हो गले जिते ध्रुव महाराज देखिले जे भगवान अंतर्ध्यान हो से विचलित हो पड़े जे भगवान मोर ध्यान किपरि अंतर्ध्यान हो गले तेणु से चक्षु बंद कर ध्यान करुले तेणु से चक्षु खोलीदे जिते ध्रुव महाराज चक्षु खोली दौरान से देखुं जो भगवान को से हृदय ध्यान करुले से भगवान तांकर चक्षु सम्मुख में दंडायमान तेणु भगवान को दर्शन कर निजर चक्षु सम्मुख ध्रुव महाराज
कर हृदय रे भगवत प्रेमर उद्रेक से चक्षुरु लोतकर धारा प्रवाहित है कंठ गदगद ही उठिला शरीर कंपित होगा लगला। यही अवस्था ध्रुव महाराज भगवान के चरण रे दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम करी से भगवान का सुंदर से रूप को दर्शन करुछंती चक्षुर आनंदाश्र प्रवाहित होउसी जेपरि ध्रुव महाराज तांकर चक्षु दुईटी माध्यम रे भगवान के से सुंदर रूप को पान करुछंती। एपरि किछि समय व्यतीत हवा पर ध्रुव महाराज चाहिए भगवान को किसी स्तुति करने प्रार्थना करने किंतु जेहेतु 5 वर्षर बालक से चाटशाली को जाई नथिले पाठ पढ़ापी तेणु से किसी जानी ना किपरि स्तुति करने को है भगवान किंतु इच्छा करुछंती भगवान को से स्तुति करने को चाहूछंती किंतु करि पारुना जेहेतु से किसी जानी ना भगवान के संबंध भगवान बुझीपारे ध्रुव महाराज मनोभाव जे ध्रुव तंकर स्तुति करने को चाहूँचे किंतु से करिपारुनी जेहेतु से किसी जानी तार किसी ज्ञान ना अज्ञान बालक तेणु भगवान ध्रुव महाराज मनोभाव को बुझीपारी से तंकर शंख द्वारा ध्रुव महाराज मस्तक को स्पर्श कर भगवान का शंख से हूँ ज्ञानर प्रतीक तेणु भगवान जो शंख द्वारा स्पर्श कले ध्रुव महाराज को संगे संगे ध्रुव महाराज ज्ञानर उदय है एवं ध्रुव महाराज ज्ञानर उदय हवा मात्र ध्रुव महाराज भगवान को स्तुति करने को आरंभ कले तेणु ध्रुव महाराज स्तुति बहुत सुंदर स्तुतिमान रही तेरे ध्रुव महाराज भगवान स्तुति माध्यम प्रशंसा करी शेष कहते स्थानाभिलाषी तपसी स्थित हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्य ध्रुव महाराज कहते हे प्रभु मु स्थान अभिलाषी राज्यर अभिलाषी मु तपस्या करने को आसती मु चाहती मोर प्रपितामह ब्रह्मांग राज्य ठार उच्चतर राज्य तेणु से राज्य अभिलाष ही मु आसती तपस्या करने एवं तपस्या करी मु वर्तमान आपण को प्राप्त है स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थित हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्य मु क्या प्राप्त आपण को प्राप्त है किंतु आपण सहजरे क्या प्राप्त होती ना देव मुनीन्द्र गुह्य एपरिक देवता माने श्रेष्ठ मुनि ऋषि माने से माने बहुकाल तपस्या करी मध्य से माने आपण को प्राप्त ही पारंती ना आपण से गुप्त रूप रे थांती मुनि ऋषि मान एवं देवता मान देवता मुनि ऋषि माने आपणकर दर्शन करिवार सौभाग्य प्राप्त ही पारंती ना किंतु जो भगवान देवता एवं मुनि ऋषि मान दुर्लभ से भगवान को मु तपस्या द्वारा आज प्राप्त है काचन विचिन्नन अपि दिव्य रत्न किंतु हे प्रभु मु जतबेले तपस्या करी आपन को संतुष्ट करने आसी सेतबेले मु आसी किसी काच खंड मागिबा
कहीं भगवान के निकट को जाती काच खंड मागे काच खंड सब रास्तार पड़ रही काच खंड कहीं रास्तार उठाती नहीं जावाई घर जदि कौन से धनरत्न पड़ी रास्तार टंका पैसा पड़ी समस्त उठे नहीं किंतु काच खंड पड़े कहीं उठेबे तेणु ध्रुव महाराज वर्तमान राज्य को से जो राज्य कामना करते ब्रह्मा ठार उच्चतर राज्य से राज्य को काच खंड सहित तुलना कहते प्रभु मु आसी आपण निकट को तपस्या करी आपण को संतुष्ट कर से काच खंड मागे राज्य मागे किंतु वर्तमान काच विचिन्न अपि दिव्य रत्न किंतु मते काच खंड बदल आपण परी दिव्य रत्न प्राप्त हो जदि काच खंड बदल कौन से रत्न मणि रत्न पड़ी कौटी लोक स्वाभाविक भाव उठे न स्वाभाविक कथा तेणु ध्रुव महाराज कहते मुझे काच खंड मागे आसती आपण निकट को किंतु वर्तमान आपण परी दिव्य रत्न को मुझे प्राप्त हो गल तेणु मोर आउ काच खंड की लाभ अर्थात मोर आउ राज्य दरकार ना मु आपण को प्राप्त हो गली दिव्य रत्न को प्राप्त हेले आपण परी तेणु मोर आउ काच खंड दरकार नहीं कि मोर से राज्य दरकार स्वामीन कृतार्थस्मि वरम न जाच कि हे प्रभु मु आपण को प्राप्त ही कृतार्थ हो गली आउ मोर कौन से बर जाचना करिवार अभिलाष मु से राज्य आउ कामना करने को चाहूनी तेणु ध्रुव महाराज जो एपरी प्रार्थना कले से भगवान ध्रुव महाराज प्रार्थना संतुष्ट है भगवान ध्रुव महाराज कहते जे ध्रुव तुम्हारा तपस्या मु संतुष्ट होइछि एवं तुम्हें जो कामना रखी तपस्या आचरण कर मु तुम्हारा से कामना को मध्य पूर्ण कर ध्रुव चाहूना वर्तमान किंतु भगवान कहते ना तुम्हें जो उद्देश्य तपस्या आचरण कर मत संतुष्ट करी वरदान प्राप्त होगापाई मु तुमको वर्तमान से ही वरदान प्रदान कर तुम्हें ब्रह्मा ठार उच्चतर राज्य कामना कर जदियो ब्रह्मा ठार उच्चतर राज्य नहीं ब्रह्मलोक ठार उच्चतर राज्य नहीं किंतु मु तुम ये वैकुंठ सृष्टि कर जे ब्रह्मलोकर उच्च तेणु भगवान कहते तुम मुझे वैकुंठ लोक सृष्टि कर तेणु तुम्हें 36,000 वर्ष ये भूतल राज्य शासन कर तुम्हें चाहिए तुम पितांकर राज्य प्रथम तापर तुम कहल चाहिए जे ब्रह्मलोकर राज्य ठार उच्चतर राज्य तुम्हार सबू इच्छा को पूर्ण कर तुम्हें तुम पितांकर राज्य को प्राप्त हो एवं 36,000 वर्ष ये भूलोक राज्य शासन कर 36,000 वर्ष राज्य शासन कले मध्य तुम्हें केवे वृद्ध हो तुम्हारे इंद्रिय माने सब समय सतेज रहे एवं तुम्हें राज ऐश्वर्य भोग कर तुम्हार कनिष्ठ भ्राता उत्तम से मृगया को जीवे आ मृगया बनरे तंकर मृत्यु हो तुम्हार विमाता तुमको जो अपमानित करछंती तुम्हार विमाता पुत्र शोकरे पागल हेबे
आ पुत्र शोकरे पागल हो जिते वन को जीवे वन अग्नि रे तांकर मध्य मृत्यु हो। तेणु कौन से भागवत भक्त को अपमानित करवा बहुत तार फल बहुत भयंकर। तेणु ध्रुव महाराज को तांकर विमाता अपमानित करथिले। तेणु भगवान कहते तांकर यही गति हो से निज पुत्र को हरेबे एवं पुत्र शोकरे पागल हो वन अग्नि रे दग्धीभूत एवं तुम्हें 36,000 वर्ष राज्य शासन पर तुम्हें मोर धाम को प्राप्त हो। जो धाम ब्रह्मांकर लोक ठारू उच्चतर धाम। तेणु भगवान ध्रुव महाराज समस्त इच्छा को पूर्ण करदे। पूर्ण कर सारिबा पर भगवान अंतर्धान है। तेणु वर्तमान ध्रुव महाराज भगवान ठार वरदान प्राप्त ही से गृह को प्रत्यावर्तन कर। गृह को प्रत्यावर्तन करने समय से आनंदित हवा कथा जे भगवान तांकर समस्त इच्छा को पूर्ण कर तांकर तपस्या सफल हो। किंतु ध्रुव महाराज आनंद अनुभव करना कहीं आनंद अनुभव करना जदिव तांकर इच्छा सब पूर्ण हो भगवान पूर्ण कर दी। ध्रुव महाराज यही श्लोक से कथा कह निजर मनोभाव को व्यक्त कर। तेणु कहते मया एतत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि। जे मो द्वारा जो वर प्रार्थना मु जो चाहती जे मोर पितांकर राज्य ठारू उच्चतम श्रेष्ठ राज्य ये प्रार्थना किपरि भाव ना यही परी जेपरी जने व्यक्तिर मृत्यु हो जाइए किंतु व्यक्तिर मृत्यु होला परे भी आम तार चिकित्सा जारी रखी चिकित्सा करुचे काले से जीवित है जहाँ केवे संभव न जार आयुष शेष हो जाए जार मृत्यु हो तार चिकित्सा कर किसी लाभ नहीं। ठीक सेहीपरि ध्रुव महाराज कहते जे मु भगवान को प्राप्त है आ भगवान को प्राप्त हमार अर्थ कौन ना संगे संगे मु मुक्त हो जावा कथा भवबंधन भगवत धाम चली जावा कथा भगवान को प्राप्त हमार ये हूँ फल। किंतु मोर दुर्भाग्य मोर जो भौतिक कामना रही जाइथिला जे मु मोर पितांकर राज्य ठारू प्रपितामहंकर राज्य ठारू उच्चतर राज्य ये कामना मते पुणी यही भवबंधन रे बांधिक रख मु भगवान को दर्शन कली संगे संगे मु भगवान के साथी रे चली जाई पारि था भगवत धाम किंतु मोर ये कामना रही हेतु भगवान मते पुणी से वरदान देले राज्य भोग करने मु पुणी भवबंधन रे पड़िली। तेणु ध्रुव महाराज से अनुताप कर कहीं कामना पोषण कली प्रसाद्य जगदात्मनम मु तपस्या आचरण करी ये समस्त जगतर आत्मा स्वरूप भगवान तांको मु प्रसन्न कली तपस्या द्वारा कठोर तपस्या द्वारा
जो भगवान को दुष्प्रसादनम, जो भगवान को संतुष्ट करवा एत सहज न, किंतु मो 6 मास भितर तपस्या करी भगवान को संतुष्ट करी तांकर वरदान प्राप्त है। भावच्छेदम अजाचे, किंतु मु एते मूर्ख जे जो भगवान ए भाव बंधन को छिन्न करी पारंती, जदि कहीं भगवान को प्राप्त हो गला तार भवबंधन छिन्न ही जावा कथा, से मुक्त ही जावा कथा। किंतु ध्रुव महाराज कहते भवच्छेदम अजाचेहं भवम, जो भगवान भवबंधन को छिन्न करने ପାଇଁ समर्थ, मु सही भगवान को तपस्या करी संतुष्ट करी, जहाँ को संतुष्ट करने मध्य असंभव, तांको संतुष्ट करी मु कौन मागिली, यही भवबंधन ही मागिली। तेणु ये हूँ भाग्य विवर्जित। एथर जना पड़ुची जे मु भाग्यहीन, मु प्रकृत भाग्यवान न। जो भगवान भवबंधन को छिन्न करि पारिबे, आमको भव संसार उद्धार करि पारिबे, आमे एते मूर्ख एते हतभागा, आमे सही भगवान के निकट को आसुचे आ तांको कौन मागुचे, धनं देहि जनं देहि रूपं देहि। हे प्रभु मते धन दियंतु, जन दियंतु, रूप दियंतु, मो दुख दूर कर दियंतु, या मागुचे हमें भगवान। साधारणतः देखा जाए लोक माने मंदिर को आसंती किसी ना किसी कामना नहीं आसंती, भगवान को मागंती, किसी भोग लगे मानसिक रखी भगवान मोर यही इच्छा को पूर्ण कर दो, मोर यही कामना को पूर्ण करो। ये हूँ आमर मूर्खा। कारण जो भगवान आमको ये संसार बंधन रु, संसार कष्ट रु, संसार दुख रु सबुदिन मुक्त कर दे पारिबे, आमे ए भवबंधन रु किपरि मुक्त हवा से जिनस न मागी आमे भगवान को आसे मागुचे किपरि आमे आहुरी बंधन रे पड़िबा, आहुरी बांधी हवा। तेणु आमे भगवान को से जिनस मागुचे। तेणु ध्रुव महाराज से निजको धिक्कार कर मु कहीं कामना कली राज्यर कामना, जदि मु राज्यर कामना करी न थांती भगवान मते दर्शन देथिले, से संगे संगे मते तांकर निकट को नहीं जाई था। किंतु जेहेतु मोर राज्यर कामना थिला, तेणु भगवान मते संगे संगे मुक्ति प्रदान कले ना, मते पुणी भौतिक बंधन रे पड़िबा पई वरदान प्रदान करे। सेते पई ध्रुव महाराज से निजको धिक्कार करछन जे मु काहे के पर कामना पोषण करी आसली तपस्या करिया। जदियो से 5 वर्षर बालक थे, तांकर सेते बुद्धि नथिला, विमातांक द्वारा अपमानित होते, तार प्रतिशोध नापी चाहूले। तेणु तांकर कामना हवा स्वाभाविक। किंतु जेहेतु वर्तमान ध्रुव महाराज शुद्ध हो जाइछन्ति, तांकर कौन सी भौतिक कामना नहीं, सेथिपाई से पुणी भवबंधन रे बांधी हवापाई उचित मन करूना, निजको धिक्कार कर। जदियो भगवान तांको वरदान दे सारी,
से 36,000 वर्ष राज्य भोग करेंगे, तांकर इंद्रिय माने सतेज रहिबे, से वृद्ध हेबे नहीं। किंतु तथापि एपरी परिस्थिति को ध्रुव महाराज चाहूना, से से निजको धिक्कार कर। तेणु परवर्ती अवस्था आम देखा जे ध्रुव महाराज भगवान का आदेश अनुसार 36,000 वर्ष राज्य शासन कर एवं शेष से तांकर पुत्र को राजगादी समर्पण करी से बदरिका आश्रम चली जाइछन्ति तपस्या करने। एवं बदरिका आश्रम जिते से तपस्या करुछन्ति एवं कृष्ण प्रेम विह्वल होती, से समय वैकुंठ ध्रुव महाराज विमान धरी नंद एवं सुनंद भगवान पार्षद वैकुंठर पार्षद से माने ध्रुव महाराज वैकुंठ स्वर्णर विमान धरी आसुँच ध्रुव महाराज को वैकुंठ नहीं जाए। तेणु जिते ध्रुव महाराज वैकुंठर विमान को देखिले एवं वैकुंठर पार्षद विष्णु पार्षद सुनंद और नंद तांको दर्शन कले, तांको प्रणाम निवेदन करी ध्रुव महाराज जितेबाला दंडायमान होती से नंद सुनंद कहले जे ध्रुव आमे भगवान के द्वारा प्रेरित ही तुमको वैकुंठ नहीं जावाई आसीस, तुम्हें ये विमान आरोहण कर। ध्रुव महाराज पार्श्ववर्ती नदी स्नान करी समस्त मुनि ऋषि मान ठारू आशीर्वाद प्राप्त ही से वैकुंठर विमान को परिक्रमा करी जितेबाला वैकुंठर विमान आरोहण करने को जाउछन्ति सेतेबाला मृत्यु आसी मृत्यु रूप धारण करी ध्रुव महाराज के सम्मुखें आसी छिड़ाए एवं मृत्यु प्रार्थना करुच्ची ध्रुव महाराज जे मोर उपयोग करते। तेणु ध्रुव महाराज मृत्युर मस्तक पाद दे से विमान आरोहण कर मृत्यु को विमान आरोहण पहाच पड़ी व्यवहार कर। ये हूँ भक्तर सौभाग्य। जो माने भगवान कृष्णकर भक्त हुअन्ति मृत्यु से भयंकर रूप से आसना, किंतु जो माने भक्त नुहंती से मृत्यु भयंकर रूप से आस। तेणु भगवान भक्त मान जो मृत्यु समय उपस्थित हुए से वैकुंठर विमान आसे, किंतु जो माने अभक्त भगवान कृष्णकर भक्त नुहंती से जमदूत मैंने आसता भयंकर रूप धारण कर से जमराज निकट को नवापाई दंडित करने उद्देश्य। तेणु भक्त मानकर गति एवं अभक्त मानकर गति भिन्न भिन्न। भक्त माने वैकुंठ धाम को प्राप्त हे, अभक्त माने नरक को प्राप्त हे। ये हूँ तबे ध्रुव महाराज जो वैकुंठर विमान आरोहण कले से जाउछन्ति विमान चली ध्रुव महाराज मन आसला जे मु भगवान भक्ति आचरण करी वर्तमान वैकुंठ यात्रा करुछि, वर्तमान मोर जन्म सार्थक हो गला। किंतु मोर माता जे कि बाल्य काल रे मते उपदेश देथिले भगवान हरिंकर तपस्या आचरण करी तांको संतुष्ट करबा पाए मोर मातांकर ताहले कोन हो
माता उपदेश प्राप्त ही मु तपस्या आचरण करी भगवान को संतुष्ट करी बर्तमान मु भगवान के धाम को जाऊँ किंतु मोर माता तो पछरे रहीगले तांके मु किसी कर पारलिनी जिते ध्रुव महाराज एपरी चिंता करुँचे से वैकुंठर जो आसी पार्षद द्वय नंद एवं सुनंद से माने जानीपारे ध्रुव महाराज कौन चिंता कर कारण वैकुंठर पार्षद माने जपरी भगवान अन्यर मनोभाव को जानीपारती वैकुंठर पार्षद माने जानीपारती तेणु से ध्रुव महाराज को कहले जे ध्रुव ये देख तुमर ये विमान आगे आ गोटे विमान जाऊँगी वैकुंठ आ से विमान रे तुम माता बस तार अर्थ तुमर माता तुम पूर्वर जाऊँ वैकुंठ तेणु जो माता माने निजे भगवान भक्त एवं पुत्र मान को संतान मान को भगवान भक्ति करने उत्साहित कर उपदेश दे द्वारा से उपकृत होती माता मान से कहुई कुलं पवित्र जननी कृतार्थ वसुंधरा वा वसति सदन नृत्यंति स्वर्गे पितरोपि तेषां जेषां कुले वैष्णव नामधेय तेणु जो परिवार जड़े वैष्णव हुंती भगवान विष्णु बा कृष्ण भक्त हुंती से कुल पवित्र हो जाए माता एपरी पुत्र को बा संतान को जन्म देथिबा हेतु मातांकर जन्म देवा सार्थक है गांधारी शतपुत्र को जन्म देथिले कहीं कृष्ण भक्त नथिले तांका जन्म देवा शतपुत्र को व्यर्थ है किंतु कुंती देवी तीन पुत्र को जन्म देथिले समस्त भगवान के भक्त माद्री देवी दुई पुत्र को जन्म देथिले समस्त भगवान के भक्त तेणु तांकर पुत्र जन्म देवा सार्थक है तेणु जननी कृतार्थ वसुंधरा वा वसति धन्य आ जो स्थान एपरी भगवत भक्त जन्मग्रहण करती से स्थान पवित्र हो जाए तीर्थ स्थान रे परिणत है एवं से कूल जो पितृपुरुष माने निजर पाप कर्म हेतु नरक जंत्रणा भोग कर तेणु से कूल जड़े वैष्णव होगा मात्र से माने नरकर उद्धार हो स्वर्ग आनंद नृत्य करते तेणु जड़े जदि गोटे परिवार रे भगवान कृष्ण भक्त हुए ताहले माता पिता को से उद्धार करिवो कुल को उद्धार करिवो समस्त को उद्धार कर ये होची कृष्ण भक्त हवार लाभ तेणु ध्रुव महाराज एपरी भाव जन्म को सार्थक कले नारद मुनिकर उपदेश प्राप्त है एवं शेष भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्त है हरे कृष्ण।